Good morning, students. Chapter number 14, factorization. Now today we have to start with exercise 14.1. In this exercise we have to factorize a given expression. It means we have to take common from the algebraic expression, and then after that it means you have to find out the highest common factor. Then after that you have to find out their factors. Now look here, in the first part, a square b plus 5ab. Now first of all, this is an algebraic expression. How many terms are there? Two terms are there. Now look here, what is common in these two terms? One, a is there, a is here also, b is there, b is here also. It means ab is the highest common factor. It means a square b will be divided by ab, 5ab will be divided by ab. It means ab is the highest common factor. It means this is the common factor of these two terms. It means this ab will divide these two terms. If we take ab common from these two terms, then after that you put the multiplication sign, then bracket starts. After taking out ab common from this, it means what you have to do? Actually what you have to do, you have taken ab as common, then into bracket start, then what comes in the bracket? A square b divided by ab plus 5ab divided by ab. ab cancel out. A, it means here a is left and here 5 is left. This, it means you have factorized a given expression. It means the product of these two factors is equal to the expression given. The product of these two factors is equal to the expression given. This was the SCF and this was the quotient. After dividing, if you take AB as common, then these two terms are divided by the SCF, then you get the quotient. It is the SCF, this is the quotient, and SCF into quotient you are getting as the expression. शॉर्टकट वे में आपको बताया आपको करना क्या है, दोनों में से आपको जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, फिर इंटू का साइन लेके ब्रैकेट स्टार्ट. अब अगर इसमें से आपने ए बी हटा दी तो बचा सिर्फ ए, क्योंकि ए स्क्वायर इज ए इंटू ए. इट मीन्स ओनली वन ए इज लेफ्ट. आई हैव रिटन ए. इसमें से अगर आपने ए बी को छुपा दिया तो बचा क्या? 5. राइट, प्लस 5. इट मीन्स ए बी एंड ए प्लस बी. इफ़ यू मल्टीप्लाई दीज टू यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. आपको प्रोडक्ट फॉर्म में प्रॉपर लिखा हुआ है. इट मीन्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एस सी एफ इंटू द quotient. Now second part to first part, 7x cube y plus 7xy cube. Now see what is common in this. 7 is coming both the terms. It means 7 is common. Here x cube is there, here x is there. It means x is common. Here y is there, y cube is there. तो जो छोटी डिग्री होती है वही चीज़ कॉमन होता है. मतलब 7xy आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है. 7xy is the highest common factor. It means this is the highest common factor. 7xy, it means this term will be divisible by 7xy and this term will also be divisible by 7xy. After taking 7xy common, into sign is then the bracket starts. अब इसमें से अगर हम 7xy को हटा देंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये लिखा है 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई. अगर हमने एक x हटा दिया, एक y हटा दिया, एक 7 हटा दिया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर. सिमिलरली इन दिस व्हाट इज दिस? 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई. तो अगर हम 7xy को इसमें हटा देंगे तो बचेगा क्या? वाई स्क्वायर विद द प्लस साइन. इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब दोनों में जो चीज़ हमको कॉमन दिख रही है वो आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. इसका मतलब वो दोनों टर्म को डिवाइड करेगी पूरी तरह से. फिर जब आप कॉमन निकालने के बाद जब दोनों टर्म को आप इस एचसीएफ से डिवाइड करते तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलता है? क्वोशिएंट मिलता है. मतलब आपने इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया. नाउ फर्स्ट पार्ट, 9m प्लस 18n. व्हाट इज़ कॉमन इन दीज टू? ओनली 9 इज़ कॉमन. सी 9 इज़ हेयर इट इज़ 2 इंटू 9. तो दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है. 9 हमने बाहर निकाल लिया. अगर 9 बाहर निकालने के बाद अब ब्रैकेट में आएगा क्या? पहले टर्म से 9 को हटा दीजिए तो सिर्फ m बचा, m आएगा. प्लस एंड आफ्टर रिमूविंग 9 फ्रॉम दिस यू विल गेट ओनली 2n. आप क्या कीजिए, चुपचाप ये करना है. 9 लिखा है इंटू, देन 9m इज़ डिवाइडेड बाय 9. ये आपका फर्स्ट टर्म था और ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपने बाहर कॉमन लिया है. ठीक है. प्लस 18n
डिवाइडेड बाय 9, तो आपका 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 और 18 कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा। इट मीन्स इन ब्रैकेट यू विल गेट m + 2n। इसको फैक्टराइज करके हमने ऐसे लिख दिया, मतलब कॉमन लेने का तरीका है। कॉमन लेना आप लोग को आता होगा, जो चीज़ आप कॉमन बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट में जो चीज़ बची होती है वो चीज़ अंदर आती है। नाउ फोर्थ फर्स्ट पार्ट, 15a² b² c minus 3abc whole square. Here it is 15, it means 3 into 5, here it is 3. A square is there, b square is there, c is there, a b c square. It means in both the terms 3abc is common. अब 3abc हमने कॉमन निकाल लिया है, इसका मतलब अब ब्रैकेट शुरू होता है, तो 15a² b² c डिवाइडेड बाय 3abc यू विल गेट 5ab, 3abc² डिवाइडेड बाय 3abc यू विल गेट c। मतलब ये जो दोनों टर्म हैं वो इस एचसीएफ से डिवाइड होने के बाद यहाँ ब्रैकेट वाले टर्म आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट 5 फर्स्ट पार्ट, 5x³ + 10x² + 15x. Now we have to take common from these three terms. 5 is common in all these three terms and x is common. यहाँ x³ है, x² है, यहाँ x है, तीनों में सबसे छोटा क्या है x, तो x कॉमन होगा, इसमें 5 सबसे छोटा तो 5 कॉमन। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, आफ्टर डिवाइडिंग 5x³ by 5x you will get x², फिर नेक्स्ट प्लस 10x² डिवाइड बाय 5x you will get 2x, 15x divided by 5x you will get 3. Now next 6 first part. Now see this 14, 21, 28. It is a table of 7. It means in these three things 7 is common. p² q² p² q pq². It means pq is common. सब में pq तो दिख ही रहा है, भले वो स्क्वायर हो उससे कोई मतलब नहीं, पर pq सब में कॉमन दिख रहा है। It means it is a SCF. Now divide this first term by this SCF, you will get 2pq. अब 14p² q² को आप इससे डिवाइड कीजिए, you will get 2pq प्लस 21p² q को 7pq से डिवाइड कीजिए, you will get 3p माइनस 28pq² को 7pq से डिवाइड कीजिए, you will get -4q. Now 7 फर्स्ट पार्ट. Now see this, ये आपका एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इट इज़ बाइनॉमियल. In this bracket is common, 3p 4q is common. I have taken out common. Now 7x minus 14x square में आपका 7x common, 7x and this bracket portion is common. अब हम इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे 1 ही मिलेगा. जब आपने ये पूरा यही चीज़ कॉमन निकाली तो यहाँ 1 ही तो बचा. फिर दूसरे में आपको इस पूरे को इससे आप डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट वाला पूरा कट जाएगा. 14x² डिवाइड बाई 7x यू विल गेट 2x इन द ब्रैकेट. इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज इन द फैक्टराइज फॉर्म लाइक दिस. मतलब तीनों का प्रोडक्ट इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा. नेक्स्ट है 8x² a² प्लस b², 12x a² प्लस b². सी दिस इज़ द सिंगल टर्म, दिस इज़ द सिंगल टर्म. इसमें a² प्लस b² तो कॉमन दिख ही रहा है. अब 8x² 12x में 4x दिख रहा है, क्योंकि 8x² आपका 4x से डिवाइड होगा, 12x भी आपका 4x से डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों में हमको 4x कॉमन दिख रहा है. 4x a² प्लस b². अब हम पहले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2x. दूसरे टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट +3. नाउ 9 फर्स्ट पार्ट, 4 इन ब्रैकेट x प्लस 3y होल क्यूब, 12x प्लस 3y होल स्क्वायर. तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन होता है. यहाँ क्यूब था, दोनों सेम है, छोटी पावर होती है वो कॉमन, तो इतना पोर्शन हमने कॉमन ले लिया. अब 4 और 12 है, हमारा 4 ही कॉमन होगा. तो यहाँ पे अगर हम कॉमन इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें x प्लस 3y मिलेगा. फिर इस पूरे को हम इससे डिवाइड करेंगे तो +3 मिलेगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3. दिस ब्रैकेट इज सेम इन ऑल दिस. 2a प्लस b माइनस c होल क्यूब, 2a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर, 2a प्लस b माइनस c. सबसे छोटी पावर को आपको कॉमन ले लिया है. यहाँ 20x था, 15x² था, 5x³ था, तो 5x तीनों आपका 5 से डिविजिबल है और x है, तो सबसे छोटी पावर x की हम कॉमन लेते हैं. 5x इन ब्रैकेट 2a प्लस b माइनस c, ये पूरा कॉमन आ गया. अब इस पूरे को पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको 4 मिलेगा. 20x डिवाइड बाई 5x यू विल गेट 4, और यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पावर 2 पावर 3, तो यहाँ पावर 2 बचेगा. प्लस अब इस पूरे टर्म को आप इससे डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 3x. यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ 1 था, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बचेगा. 3x 2a प्लस b माइनस c. आफ्टर डिवाइडिंग दिस टर्म बाय दिस यू विल गेट -x². 5x³ 5x, यू विल गेट x माइनस x².
Now come to question number 11. 5x raised to the power 5y minus 15x cube y cube plus 25x square y की पावर 4 माइनस 35x y 5. अब सब में आपको सबसे छोटा, अगर आप न्यूमरल कोफिशिएंट देखते हैं तो आपको सिर्फ 5 सबसे छोटा दिख रहा है, तो ये कॉमन आ गया. यहाँ x की पावर 5 है, y है, तो y सबसे छोटा, y की रेस टू द 1, तो y कॉमन होगा. यहाँ पे आपको x रेस टू द 1 दिखेगा तो x कॉमन हो, 5xy कॉमन. अब ईच टर्म को आप 5xy से डिवाइड कीजिए, वो आपका ब्रैकेट में आएगा. दिस टर्म डिवाइड बाय 5xy यू विल गेट x रेस टू द 4. दिस टर्म डिवाइड बाय 5xy यू विल गेट 3x स्क्वायर y स्क्वायर. दिस टर्म डिवाइड बाय 5xy यू विल गेट 5xy क्यूब. दिस टर्म डिवाइड बाय 5xy you will get minus 7y raised to the power 4. Now come to the 13th part. 3y in bracket x plus 3y plus 3x plus 3y whole square. See x plus 3y, ये दोनों तो हमको कॉमन ही दिख रहा है. जो छोटी पावर होती है वो कॉमन होती है. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 कॉमन है. ठीक, 3 in bracket x plus 3y is common. Then bracket starts. इस पूरे को आप इससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट y. इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट x plus 3y. These two are the like terms, so you will add 3y plus y, you will get 4y plus x. It means ये पूरे एक्सप्रेशन को हम इन तीनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. Now the factorization exercise 4.1 is completed. View this video. You have to do these questions in your last to copy. Thank you class.